recording भी कर लें. So class 10th students, today you are studying about the important seaports of India, starting from Kandla in Gujarat, then Mumbai in Maharashtra, and very close to Mumbai is Jawaharlal Nehru Seaport, and then in Marmagaon, which lies in the state of Goa, then New Mangalore in southern part of Karnataka. On the coast of Karnataka lies the New Mangalore Seaport. And then Kochi and Trivandrum in Kerala. Kochi is also important. Trivandrum is also important. Trivandrum is the capital and its new name is Thiruvananthapuram. Right? It has international airport also, Thiruvananthapuram. And Kochi has a shipyard also, and it is also a commercial port. Then in Tamil Nadu, Tuticorin, which is a commercial seaport. And in the northern coastal side of Tamil Nadu is Chennai. It is also a seaport as well as a international airport, which is known as Minambakam Airport, right? Then in Andhra Pradesh is Visakhapatnam. And as you have told, Visakhapatnam is very important because it has an iron and steel industry also. It has a software technology park also and shipbuilding industry also. And seaport is also there. So it is very important place. And in the map work, it is asked generally. Why? Often Visakhapatnam is asked in map work. So you should know the location. In which part of Andhra Pradesh is Visakhapatnam located? So you just remember this, that Visakhapatnam is located in the northern coastal part of Andhra Pradesh, right? This is northern coastal part of Andhra Pradesh. If you will mark Visakhapatnam here, it will be wrong. Here it will be wrong. So you have to remember this, that after the Godavari and Krishna Delta, these two are what? This is Godavari Delta, this is Krishna Delta. So just in the north of the Godavari and Krishna Delta lies the Visakhapatnam. So for remembering the location, you should know that in the northern part of the coastal side of Andhra Pradesh lies the seaport of Visakhapatnam. Then come to Odisha. What is the name of Adhishri here? Odisha seaport? Paradweep. Paradweep. Paradweep is also recently developed seaport, you can say, because after independence it was developed, right? And then comes the seaports and riverine port of West Bengal. Haldia. Haldia and Kolkata. Haldia is directly related on the sea coast and Kolkata is located on the bank of river Hooghly. It is not directly located on the coastline. So it is known as riverine port. Okay. So now you remember all the 12 major seaports. Can you count this? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These two are included together. Mumbai and Jawaharlal Nehru Seaport. So on the whole, there are 12 major seaports. Now we shall study in detail about the seaports, about the India's seaport, right? So come to the page. So we shall start from here. This paragraph, last paragraph of this first column, major seaports. What is the length of India's coastline? See here. 7,516.6 kilometers. So it is a very long coastline, which is of lot of commercial benefit and strategic importance also. India is located with 12 major and 200 notified
minor and intermediate ports, right? So we have 12 major seaports and 200 are about minor and intermediate ports, which are also equally important for trade purpose. These major ports handle 95% of India's foreign trade. Means the 12 major seaports handle 95% of India's foreign trade. Now let us study one by one about the seaports. So write a question. Are you ready with your geography copy and pen? Yes, ma'am. So write today's date and write a question. Which port is known as which seaport is known as the Deen Dayal port? Which port of India is known as Deen Dayal? See the first line here in second column. Deen Dayal port. Write about its importance. Write about its importance. Which seaport of India is known as Deen Dayal port? Write about its importance. Start writing the answer. Repeat the question. Which seaport is known as Deen Dayal port? Which write about its importance. हाँ ठीक है तो लिखो कांडला सीपोर्ट which is located on the west coast of Gujarat. Kandla seaport, which is located on west coast of Gujarat, is known as Ma'am, which is located at west coast of Gujarat. ब्रैकेट में लिख सकते हो कच्छ, KACH, वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात, कच्छ कोस्ट है ना, कच्छ कोस्ट, कच्छ वाले रीजन का कोस्टल एरिया जो है उस पर ये लोकेटेड है। गुजरात का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, तो मैप में देखोगे तो इसलिए कांडला एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है उसका लोकेशन याद रखना है मैप को देखते हुए। तुम्हारा होमवर्क में यही था कल, मैप वर्क ऑन सी पोर्ट्स। लिख लिए? राइट द नेक्स्ट सेंटेंस। Ma'am, आपने बोला कांडला सी पोर्ट which is no located on the west coast of Gujarat. Bracket में कच्छ कोस्ट। Full stop. Ma'am, is known as कांडला। ठीक है? It was soon opened after. Ma'am, is known as के पास कांडला। शुरू से सेंटेंस पढ़ो तो। Kandla seaport, which is located at the west coast of Gujarat, Kutch coast, is known as. नहीं, अब known as लिखने का जरूरत नहीं है, कांडला तो तुम शुरू में लिख ही लिए। Is located at Kutch coast, हो गया ना? इसका फुल स्टॉप डाल दो। ओके मैम। हाँ, अपना सेंटेंस पढ़ के ना खुद उसको कंप्लीट करो। हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस उसमें लिखे, It was opened soon after independence
it was opened soon after independence to ease the volume of trade, EASE, to ease the volume of trade on the Mumbai port. The volume of trade on Mumbai port because Karachi port went to Pakistan after partition. Because Karachi port went to Pakistan after partition. went to के बाद Went to Pakistan after partition. ये पॉइंट समझ लिए ना कि इंडिया पाकिस्तान तो ब्रिटिश टाइम में एक साथ था, तो उस समय ना वेस्ट कोस्ट पर सिर्फ एक ही सी पोर्ट हुआ करता था, उधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में वो था सिर्फ कराची पोर्ट। तो कराची तो डिवीजन के बाद पाकिस्तान का हो गया, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो गई, सारा ट्रैफिक जो था वेस्टर्न साइड का वो मुंबई से जाने लगा, तो मुंबई सी पोर्ट हैंडल करना पड़ता था मुंबई सी पोर्ट को, तो वो बहुत मुश्किल था, इसलिए कांडला पोर्ट स्टार्ट किया गया। मतलब कराची का जो लॉस था ना कराची सी पोर्ट का, उसको फुलफिल करने के लिए कांडला सी पोर्ट स्टार्ट किया गया। और हाल ही में इसका नाम क्या रख दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, अब इसका और इंपॉर्टेंस देखो कि वो किस तरह का पोर्ट है। इट इज अ टाइडल पोर्ट। इट इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल का मीनिंग अभी बताएंगे, पहले आंसर लिख लो। इट इज अ टाइडल पोर्ट। अब देखो गुजरात के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो एकदम कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये इतने सारे स्टेट का सारा ट्रेड हैंडल इसी सी पोर्ट से होता है, जिसको कहते हैं कांडला सी पोर्ट। तो कांडला सी पोर्ट का हिंटरलैंड बहुत बड़ा हो गया है ना। लिखो, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ exports and imports of convenient के बाद convenient handling of exports and imports of granary and industrial grains and industrial items. लिखो, grains and industrial items, full stop. Grains and industrial items, full stop. Ma'am, repeat it. You start repeating the last line. Ma'am, it is a tidal port के बाद। हाँ, उसके बाद पढ़ो तो हम उसे पूरा करेंगे। It caters to the convenient handling of exports and imports of grains and industrial items. हाँ, first up. Its hinterland are, its एक वर्ड लिखो, hinterland, HINTERLAND. Its hinterland are Jammu and Kashmir, अब तो इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख लिखना पड़ेगा। Its hinterland are जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। मैम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तुम लोग का ये पेज शेयर हो रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. और किताब भी सामने रखना। तो देखो, हिंटरलैंड किसको कहते हैं? एक सी पोर्ट, जैसे कांडला सी पोर्ट है, तो कांडला सी पोर्ट के आसपास और भी और कोई सी पोर्ट नहीं है इंडिया का। वहां के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, एकदम जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
ये सारे को मिला के राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो इंडिया का रीजन है, इसका सारा ट्रेड एक ही सी पोर्ट से हैंडल होता है, जिसको कहते हैं कांडला सी पोर्ट। तो कांडला के नियरेस्ट इंडिया का जो बड़ा रीजन है, उसका ट्रेड हैंडल करने वाले पूरे एरिया को उसका हिंटरलैंड कहते हैं। एक सी पोर्ट का हिंटरलैंड क्या होता है? वो पूरा एरिया जहां का ट्रेड उसी सी पोर्ट के थ्रू हैंडल होता है। तो कांडला का हिंटरलैंड इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना, कि कांडला से पूरा गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, लद्दाख सबका ट्रेड हैंडल होता है। तो ये सारे स्टेट्स किसके हिंटरलैंड हो गए? कांडला पोर्ट के हिंटरलैंड हो गए, ठीक है ना। तो हिंटरलैंड इज अ वास्ट एरिया ऑफ अ सी पोर्ट which handles the export and import of that port, handles the export and import of that state, that seaport. Okay, तो एक बार इस आंसर को पढ़ दो तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। Kandla Seaport, which is located on the west coast of Gujarat, Kutch coast, is known as Deen Dayal Port. It was soon opened after the independence to ease the volume of trade on Mumbai port, because Karachi port went to Pakistan after partition. Following are its importance. First, it is a tidal port. हाँ, Second, it caters to the convenient handling of exports and imports of grains and industrial items. Its hinterland are Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। हाँ, अब देखो ये जो है ना, देख रहे हो गुजरात का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, ये यहाँ से देखो, ये कच्छ रीजन है। यस मैम। इस रीजन को क्या कहते हैं? कच्छ रीजन। और ये रीजन जो है कच्छ इसको region। सौराष्ट्र कहते हैं। ये हो गया गुजरात का सौराष्ट्र। तो कांडला का, सौराष्ट्र। हाँ, कांडला का लोकेशन याद रखना कि ये कच्छ रीजन के साउदर्न कोस्ट पर है। ये कच्छ रीजन का कोस्ट हुआ ना, तो इस कोस्ट लाइन में कांडला का डॉट ऐसे सटा के आप ड्रॉ कर देंगे, बना देंगे, और तब यहाँ पे लिखेंगे कांडला। ये सी कोस्ट में टच करके बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतने बड़े कोस्ट लाइन में देख रहे हो ना, गुजरात का कोस्ट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक। तो इतने बड़े कोस्ट लाइन में जो कांडला का लोकेशन है वो ये है, कांडला, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़े बहुत माइनर सी पोर्ट्स भी हैं, है ना, जैसे द्वारका है, और भी कई सारे माइनर पोर्ट्स हैं, लेकिन मेन सी पोर्ट इंडिया का यही हो गया, कांडला। अब कांडला सी पोर्ट इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि इस तरफ, ठीक यहीं पर कौन सा सी पोर्ट था? कराची। कराची सी पोर्ट से सारा यही काम होता था पहले, जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ था तब। लेकिन जब पाकिस्तान को चला गया कराची पोर्ट, तो यहाँ का ट्रेड को कैसे हैंडल करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस कांडला सी पोर्ट वाज डेवलप्ड, राइट। सो कांडला सी पोर्ट हैंडल्स द ट्रेड ऑफ ऑल दिस रीजन, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इवन वेस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इतना बड़ा रीजन इस पोर्ट का हिंटरलैंड हो गया। ये सारे को क्या कहेंगे? इसका कांडला पोर्ट का हिंटरलैंड, क्योंकि यहाँ और कोई दूसरा पोर्ट नहीं है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हैंडल करे। तो कांडला सी पोर्ट हैज अ वेरी वास्ट हिंटरलैंड इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख एक्सेट्रा। समझ गए ना हिंटरलैंड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? यस। हाँ, अब आ गया हमारा दूसरा पोर्ट, आ गया मुंबई, है ना। तो मुंबई के बारे में अब एक क्वेश्चन बना ले। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मुंबई सी पोर्ट। अब यहां से देखोगे, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मुंबई सी पोर्ट। तुमको कम से कम 5-6 सी पोर्ट का इंपॉर्टेंस लिख लेना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया मुंबई। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मुंबई सी पोर्ट। स्टार्ट राइटिंग। Mumbai is located on the west coast of Maharashtra. Mumbai is located on the west coast of Maharashtra. थोड़ा फास्ट लिखना। It is a natural seaport. It is a natural and well-sheltered seaport
मैम नेचुरल के बाद वेल शेल्टर्ड, यहाँ एक वर्ड देखो, वेल शेल्टर्ड। वेल शेल्टर्ड मतलब वहाँ लैंड इतना इंडेंटेड है ना, कोस्ट लाइन इतना ऐसे कटा छटा हुआ है कि वो शेल्टर काफी अच्छा है वहां पर। मतलब फास्ट ब्लोइंग विंड से, इस सब चीजों से वो शेल्टर्ड है, वेल शेल्टर्ड है। वेल शेल्टर्ड, फर्स्ट ऑफ इट इज द largest commercial port of India. To decongest the Mumbai port, Ma'am, it is the largest commercial port of India. इंडिया के जितने भी ये सी पोर्ट्स है ना, उसमें सबसे बड़ा कौन है? यही है, मुंबई। और बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम से भी पहले का है। अब एक लाइन और ऐड करो यहाँ पे कि टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट, Jawaharlal Nehru Seaport was started. To decongest the Mumbai port, Jawaharlal Nehru Seaport was started very close to it as a hub port. Very close to it as a hub port. Jawaharlal Nehru started. Seaport was started very close to it. Jawaharlal Nehru Seaport was started as a hub port. ठीक है ना? जल्दी से इसकी रीडिंग कर दो तो। Mumbai Seaport. Write the importance of Mumbai Seaport. Mumbai Seaport is located on the west coast of Maharashtra. It is the natural, well-centered seaport. It is the largest commercial port of India. To decongest the Mumbai port, Jawaharlal Nehru Seaport was started very close to it as a hub port. हाँ, to decongest. Decongest मतलब मुंबई में, मुंबई सी पोर्ट में ना सी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसके क्लोज में एक और पोर्ट स्टार्ट कर दिया गया जिसका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। तो कहीं भी अगर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा हो जाती है पोर्ट में, तो उसके बगल में एक नया सी पोर्ट स्टार्ट कर दिया गया, ये इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। ठीक है? एक और पॉइंट आया तुम्हारा, जैसे कि टाइडल पोर्ट किसको कहते हैं? कांडला में तुम लिखे ना कि ये टाइडल पोर्ट है। तो टाइडल पोर्ट मतलब कि हाई टाइड जब आता है ओशन में, तब यहाँ पर वाटर का डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, तो इस समय शिप अंदर आते हैं, सी पोर्ट पर आते हैं। और जब लो टाइड होने लगता है, टाइड वापस बैक होने लगता है, तो शिप जो है वो सेल आउट हो जाते हैं, सेल आउट होते हैं, मतलब अगर उन्हें बाहर जाना है तो उसी समय वो पोर्ट से सेल आउट होते हैं। तो टाइडल पोर्ट, ओशन में का मूवमेंट तुम लोग को पता होगा कि there are 3 types of movement in ocean water. One is known as wave, the other is known as tides, and the third one is known as current. तो ये हाई टाइड और लो टाइड जो होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं शिप के सी पोर्ट पर आने में और वहां से फिर सेल आउट होने में। समझ गया ना? तो इसी को कहते हैं ये टाइडल पोर्ट। तो गुजरात का जो पोर्ट है ना, वो टाइडल पोर्ट है, कांडला पोर्ट, क्योंकि वहां का जो कोस्टल एरिया है वो क्लिफ की तरह है। क्लिफ मतलब एक वर्टिकल वॉल की तरह ऊंचा है वहां का लैंड, और उस पर वो सी पोर्ट लोकेटेड। ठीक है? देखो, कोस्टल साइड ना 2 तरह का हो सकता है। एक कोस्ट का स्लोप जेंटली होते होते एकदम सी वाटर की तरफ जाता है, तो उसको जेंटल स्लोप कहते हैं। तो जेंटल स्लोप वाला यहाँ सी पोर्ट नहीं है कांडला में। कैसा है? टाइडल पोर्ट है, मतलब एकदम एब्रप्ट है, अचानक से लो डेप्थ स्टार्ट हो जाता है, लैंड वहां एकदम हाई है कोस्टल साइड में, और सीधा नीचे की तरफ उसका फॉल है। तो इसी को कहते हैं क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर, CLIF। ऐसे कोस्टल एरिया को क्लिफ कहते हैं। तो कांडला पोर्ट जो है वो क्लिफ पर लोकेटेड है।
इसलिए हाई टाइड आने से जब कोस्टल साइड में वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसी समय शिप इसके अंदर आते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। और जब लो टाइड का समय होता है तो शिप सेल आउट होते हैं। एक और पढ़ लो, है ना, अभी थोड़ा सा टाइम है। मुंबई के बाद नेक्स्ट क्या है देखो, मर्मगांव, गुजरात, ये गोवा का। लिखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्मगांव सी पोर्ट? जरा फास्ट फास्ट लिखो तो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्मगांव, MARMAGAO? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्मगांव पोर्ट? बस 2 लाइन में इसका आंसर लिखो। मर्मगांव पोर्ट इज लोकेटेड on the west coast. Marmagaon Seaport is located on the west coast in the state of Goa. Its main function is to export iron ore through Arabian Sea. Its main function or role is to export iron ore through the Arabian Sea. अरेबियन सी से होते हुए इंडिया का आयरन ओर दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। गोवा आयरन ओर प्रोड्यूसिंग बेल्ट भी है ना। तुम लोग का मिनरल वाला लेसन अगर पढ़े होगे तो याद होगा कि गोवा महाराष्ट्र बेल्ट करके एक आयरन ओर का बेल्ट है। तो यहाँ का आयरन ओर मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है मर्मगांव सी पोर्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, न्यू मैंगलोर। सिर्फ ये क्वेश्चन मत लिखो, ऐसे ही लिख लो शॉर्ट में, ये सिर्फ पोर्ट का नाम लिखो, उसके बारे में 2 लाइन लिखो। न्यू मैंगलोर लिखो। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड in in Karnataka. कर्नाटका, ठीक है, इन द वेस्ट कोस्ट इन कर्नाटका, लिख लिए। एंड कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस एंड caters to the export of iron ore from कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस है कर्नाटका का, यहाँ बहुत ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है और ये सी पोर्ट भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करने का काम करता है। Ma'am, repeat the point. New Mangalore Seaport is located on the west coast in Karnataka and caters to the export of iron ore from Kudremukh mines. Caters to the export of iron ore from Kudremukh mines. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोची, COCHCHI, कोची। Kochi is located at the entrance of lagoon in Kerala. It is a natural harbor. It is a natural harbor. इसको जल्दी पूरा कर लो, बस 1 मिनट बचा है। Kochi is located at the entrance of lagoon and is a natural harbor in Kerala. And is important for shipyard. Shipyard. ठीक है, आज इतना ही रहेगा और कल हम लोग यहाँ तूतीकोरिन से स्टार्ट